Rajan sir, Yes. Nisha pani aaycha, Nisha Karki? I don't know whether she is here or not. She should start first. Okay. Ranjit, go ahead here. Hi, how are you? Hi, Pranjali. How are Are you? you? I'm doing good. Your voice is breaking up. Okay. I Just, will just, I'll check it. yeah, check it. My video is there? Yeah, we can hear you very nicely. Oh, okay. You can see me now? Hello, I cannot hear you though. Rajit, can you please speak? Yeah, I'm speaking. Nisha Karki said she will start first, so let's wait for 2 minutes, please. Where is she then? I'm Yeah. texting her. She said she's Just a coming. second, Prachi. What's that? I should Just a connect again? second. Just wait for a second. Oh, no problem. No problem. Take your time. Our program is going to start soon, so I would like to request all our friends to share the link of our Zoom app to our friends so that they can also come and attend today's session. Okay. You do एकछिन दा साउन्ड आइरहेन निशा बहिनी हजुर दा आइसिया छ हैन अब बिस्तारै रेडी गरेर सुरु गरेर दा म नेट अलिक स्लो छ उयो भिडियो अफ गर्यो भन्नुहुन्छ ओके ओके बिगिन Education is divine light which lightens the mind and soul of a person and leads to a happy life. Namaste and good morning from me, welcoming each one of you listening to us in Zoom and Facebook from around the globe. As we all know, our decade is conducting series named Soccer Summit, where we are talking on a different topic, different discipline in each series with a specialist of the particular discipline. Before entering into today's program, I would like to give big thanks to the founder of DECAN, our respected sir, Dr. Rajendra Kesi, for facilitating us in a various way from day we entered the academy to the till date. As always, we are here today to discuss on the topic stress management for academic excellence with our guest, Dr. Pranjila Sharma from USA. Now, I would like to request our viewers on Zoom app to mute their mic throughout the session to make it more sound and more fruitful to each one of us. If you have any questions and queries regarding today's topic, you can send us using comment box in Facebook if you are using Facebook, or you can send through the chat box which is on the right side of the Zoom app. Now, to introduce our today's chief guest, I would like to request our respected brother Ranjit Bandari to introduce our today's chief guest. Now, screen is yours. Thank you so much, Nisha Bani. Before entering to the main topic, I would like to thank our Defense Career Academy Nepal, DECAN, once again for organizing such an opportunity and platform to know more about stress management and to cope with mental health issues. And also on behalf of DECAN family, we would like to express all our gratitude towards our Honorable Chief Guest for giving us our time and to speak up upon the mental health issues and the how to manage stress in life and to move on from the depression phase. And on today's episode, we will be discussing on the topic stress management for academic excellence. And for this, we have Dr. Pranjali Sharma on the way from USA.
and she is wellness practitioner, lecturer, and research analyst. She is originally from India, Jodhpur, Rajasthan, and currently she is living in Philadelphia, Pennsylvania. In this pandemic, we have been hearing the cases of suicidal and the domestic violence that has been occurring in our society, and it's the stress management needs to be listened by everyone, so that the environment becomes peaceful. And now it's time to welcome our honorable chief guest to the program. Ma'am, welcome to our program on behalf of Deacon family. The screen is yours now, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for such a lovely introduction. And I will share the screen. So there is a PowerPoint presentation. You can see the screen. Can you Yes, see the ma'am. screen? Okay. All right. So as you have already mentioned, these days stress is so common. It is so prevalent, and stress is coming because of various reasons. Right now it is pandemic. Before that it was maybe because of any pressure, academic pressure or financial pressure, so many things. So first, before we start, we have to know whether we are facing stress or not. Lots of times we feel we cannot express ourselves. We are so much shy, or our society have conditioned us such that if we are expressing to someone that we have stress, people think that this person is weak, this person is emotionally not stable. So most of the time, mainly with the males, it happens they're not able to express themselves, and that's when the problem arises, because they keep on grilling, they have that emotions inside them, so everything stays inside them. Now there's another factor: is all type of stress bad for you? So stress is there, but not all stress is bad. Few stress are good as well. Other questions will come up: does it hamper your health? So does stress actually stimulates other organs, or whether it can have any other disorders, and what type of chronic diseases it might have, and what are the deeper sciences to manage the stress. So let's start with the definition. So the definition of stress is, I mean, it was given by Hans Slade. He was a scientist. It was given in 1936. So what he said was, this is a non-specific response of the body to any changes. So what happens is, whenever you are in present state of mind and there is any change which is about to come, for example, you are walking and suddenly a tiger comes in front of you, that's a change. Your mind will be under stress. If you have examination the next day, you will have certain stress. So what happens is, there is a change. You were generally having a very routine, normal, good life. And okay, I should also speak in Hindi, right? Yeah, ma'am, you can. Yeah, ma'am, you can. Okay. तो स्ट्रेस में ऐसा होता है कि जब भी आपको लगता है कि कुछ भी चेंज होने वाला है, तो बॉडी विल गिव यू सर्टेन हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफरेंट निकलते हैं, डिफरेंट बॉडी पर अफेक्ट करते हैं. और ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है. अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आपके फ्रेंड को स्ट्रेस हो रहा है, सब डिफरेंटली इसमें रिएक्ट करेंगे. सो आई माइट रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर. हो सकता है मुझे स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाए, दूसरे लोगों को हो सकता है कि उनकी भूख चली जाए, दे विल नॉट फील हंग्री. सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव. एवरीवन विल हैव डिफरेंट रिएक्शन टू स्ट्रेस. और देयर वर स्टडीज ऑन एनिमल्स. जब उन पर स्टडी किया गया तो सारे एनिमल्स पे स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट देखा गया था. सो इनलार्जमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, उनका एड्रिनल ग्लैंड्स बड़ा हो गया था. स्टमक में पैथोलॉजिकल कंडीशंस आने लग गई थी, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो जो स्ट्रेस होता है, इट इज नॉट जस्ट अ शॉर्ट टर्म थिंग. ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और अभी आप स्ट्रेस के बाद में you will come out of it. आपकी body goes under constant changes, which is bad at times. तो अब कुछ stress के facts. Let's see some fact. Stress is a hormonal response. So when you are stressed out, you will have a hormone cortisol which will be released. Stress kills your brain cells. So if you are preparing for any examination, if you are planning to do something good in life, you have to make sure you are impacting your brain cells. तो जो brain cells होती है, it is comprised of various matters. Even glands are there. आपके brain cells में glands होते हैं. Hypothalamus है, pituitary gland है.
ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं ये मास्टर ग्लैंड्स कहे जाते हैं. ये हॉर्मोन्स सारे बॉडी के ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं. बट अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, अगर आपको बहुत टाइम से स्ट्रेस चल रहा है, तो ये ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा. तो तभी आपने देखा है कि काफी लोग जिनको टेंशन होती है बहुत ज्यादा, उनको वेट गेन होने लगता है, बिकॉज उनके जो थायराइड ग्लैंड है वो इफेक्ट होने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस. ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा, बट उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का तरीका हमको चेंज करना है. नाउ स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी. तो अगर आपको स्ट्रेस होता है और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इट कैन लीड टू एंजाइटी. सो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स ऑफ इट. और जिनका भी स्ट्रेस बहुत रहता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. सो एज सून एज वेदर विल चेंज, या फिर सडनली कभी भी कोई प्रेशर पॉइंट उन पे आता है, देयर इम्यून सिस्टम गिव्स अप, एंड देन उनको बहुत इजीली फीवर आने लग जाएगा, कफ एंड कोल्ड इजीली होने लग जाएगा, टॉन्सिलाइटिस की इश्यूज होने लग जाएंगे. सो इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज्यादा जल्दी हैम्पर होने लगता है. और जब बहुत टाइम तक इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट हो जाती है. एंड ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जब आप इम्यून सिस्टम इज लाइक अ बॉडीगार्ड. इट अटैक्स, जो भी आपके पैथोजेंस अटैक करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे कंट्रोल करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है. बट जब आपका ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो आपका जो खुद की सेल्स है, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करना शुरू करता है. तो इट गेट्स कंफ्यूज्ड. इंस्टेड ऑफ अटैकिंग वायरस एंड बैक्टीरिया, वो आप ही के सेल को अटैक करने लगता है. तो इसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं. इसीलिए इम्यून सिस्टम को बहुत टाइम तक हमें कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए. एंड देन विमेन, फीमेल्स को थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, और वो डीपली उसको फील भी करती है. सो बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, it is there कि females will feel stress more. They will be able to feel even the minutest things, minutest changes. And stress can also lead to digestive issues. So you might have seen whenever you are stressed out, your digestion level will go down. तो क्या होगा आपको, अगर भूख, कई बार भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी भी, आप खाना खाएंगे, वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा. तो इसीलिए स्ट्रेस क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है. आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक में होना चाहिए, बट इंस्टेड वो आपके मसल्स में चला जाता है. एंड ये बहुत एविडेंट है, स्ट्रेस मेक्स यू वेरी इरिटेबल, वेरी एंग्री. तो उल्टा होता है, वी डोंट लेट फ्रेंड्स कम क्लोज टू अस, वी डोंट लेट आवर पेरेंट्स कम क्लोज टू अस. We become so stressed out, we become so irritable, so angry, we just push everyone away. And long term stress can lead to mental health disabilities. तो उसके दो रीजंस है. फर्स्ट रीजन, हाउ वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग, जो स्ट्रेस है वो ब्रेन सेल को किल कर रहा है. तो न्यूरो जनरेटिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं. ऑल्सो सिंस यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेबल, एंग्री, आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होता है, तो मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज धीरे धीरे क्रीप इन होने लग जाती है. And in females, it can also alter your menstrual cycle. Stress is also related to substance abuse. So most of the time, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैनेज करना नहीं आता स्ट्रेस. Like when they are stressed out, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, either they'll take support of alcohol or any form of drugs. So इसलिए substance abuse भी बहुत ज़्यादा common है for people who are stressed out. And ये थोड़ा सा spiritual level में भी है. जो last है, past experiences. स्पिरिचुअल लेवल पे भी है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, सपोज प्रीवियस बर्थ का कुछ भी माइंड में, अगर हमारा जो चित्त होता है उसके अंदर इम्प्रिंटेड रहता है, तो कई बार हम लोग को पता नहीं लगता कि स्ट्रेस का रीजन क्या है, बट वी आर स्टिल स्ट्रेस्ड आउट. एंड ऑल्सो फ्यू पीपल, व्हेन दे आर यंग, जब वो बचपन में होते हैं, उनके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं. जब वो स्टोर हो जाती हैं, जब भी सिमिलर कुछ भी सिचुएशन आती है, व्हेन दे आर अडल्ट, इट कम्स अप इन द सरफेस. तो वो स्ट्रेस आउट कंडीशन हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कि व्हाई दे आर स्ट्रेस्ड आउट, दे डोंट नो द रीजन, बट स्टिल दे आर बॉदर्ड बाय समथिंग. सो दीज आर द फैक्ट्स. क्या होता है नाउ, आई हैव मेंशन्ड समथिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. सिर्फ स्टूडेंट्स को या फिर एकेडमिक लाइफ में नहीं, वर्क में जाकर भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है. Why I'm mentioning this here? Because you have to make sure आप बहुत पहले से ही स्ट्रेस को मैनेज करना जान गए हैं, because लाइफ में स्ट्रेस हर जगह पे आएगा, but the thing is how you can manage it. So यहाँ पे US का मैंने स्टैटिस्टिक्स डाला है.
83% of US workers are stressed, which is a big number. If you see 83% is a big number. And 60 to 80% of workplace accidents results from stress, because they're so stressed out, they're not present in current moment. वो उनका ध्यान कहीं और रहता है. So that's why accidents बहुत होते हैं. And 1 million employees miss work because of stress. चाहे उनकी तबीयत खराब हो रही है या फिर chronic situation develop हो गई है, heart की problem, blood pressure. So they miss work. And 75% of employees believe they are more stressed out as compared to before. जो पहले था, पहले भी बहुत work होता था, but now there's more pressure. बहुत ज़्यादा pressure है, तो stress level बढ़ता जा रहा है. And जो employers होते हैं, 57% of employers, they don't care about your work-life balance. So that's why whatever you select in life, you have to make sure, you have to accept. अगर आप suppose investment banker बनना चाहते हैं, for example, you know कि उसका कितनी ज़्यादा demand है. So do your homework first कि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, जिस level पे आप जा रहे हैं, उसका demand कितना है work का. So once you are prepared, your body is prepared, your mind is prepared, when you enter there, आपको कोई surprise नहीं मिलेगा, and then you will be ready to accept that stressful situation, and आप उसको manage कर सकेंगे. Maybe by doing more exercise, maybe by eating right. आपके work hours को आप थोड़ा सा short कर सकते हैं by being more attentive to work. So these are few things. And job stress जो होता है, वो health complaints ज़्यादा लेके आती हैं in as compared to financial and family problems. Now there are stages of stress. तो जो stress होता है, इसकी stages होती हैं. So the stages are acute and chronic. Acute is anything which is sudden. तो for example, आप normal healthy state में हैं, like I've given the example of tiger. आप walk कर रहे हैं and suddenly आपके सामने tiger आ गया. So this is so acute, you were not expecting it. Tiger just came, your body came under that stressful condition, sympathetic nervous system activate हो जाता है, and then when tiger goes away, you come back to normal. So it started and it ended, and then you came back to normal situation. और ये बहुत highly manageable होता है. अब chronic की बात करते हैं. Chronic is when something is happening for longer duration. तो similar example लेते हैं. आप walk करने गए, आपके सामने tiger आया, and वो tiger चला गया, लेकिन after 1 second another animal came, like maybe lion came. Then again आपकी body फिर ready हुई, sympathetic nervous system activate हुआ, फिर थोड़ी देर बाद lion चला गया, but right after it going away, some other animal came in. So क्या होता है, आपकी body relax ही नहीं हो पा रही है, chronic situation होती जा रही है. Like आप जैसे ही stress situation में थे, फिर थोड़ा break मिला, फिर से stress situation, तो उसको कहते हैं chronic. और chronic होता है जब लंबे time से चल रहा होता है. It is not just 1 day, 2 day, a week, it can be months, it can be years for some people. तो ये जो chronic situation होती है, that is very difficult, और इससे ज़्यादा बीमारियां होती हैं. अब ये थोड़े से examples मैंने collect किए हैं. Acute stress होता है new challenge. कोई भी new challenge हो सकता है. It is related to your work, your studies, even day to day life में जो हम challenges लेते हैं, that is acute. And athletic competition, आपको एक sprint मारनी है या फिर कोई भी triathlon है, कुछ भी है, तो उस समय athletic competition में जो stress आता है, that is acute. School में presentation है next day, तो आप जो prepare कर रहे हैं रात भर, और अगले दिन आपको जो stress anxiety रहती है, that is acute. Lifting heavy weights, जब आप heavy weight lift करते हैं तो blood circulation change होता है. Physical stress body लेती है, that is also acute. Intermittent fasting is when you have gap between your meals. तो suppose आपने last meal 7 बजे खा लिया, next day की meal आप 12 बजे खाते हैं, तो since there's a gap between your meals, your body goes under stressful condition, but that is a good stress, because सारे जो toxins है उसको body dissolve करती है उस intermittent fasting में. Running sprints and recent argument with friends. So you might have noticed कि जब भी आपका argument होता है आपके friend से या किसी से भी, तो how your blood pressure suddenly increases. Suddenly आपको realize होता है कि आपकी body warm हो गई है या फिर एकदम गुस्सा आया है. But then after some time it comes down. अब chronic stress क्या होते हैं? Chronic stress होता है कि drive to work. For example, आप job करते हैं अगर पढ़ाई के साथ साथ, so you have long commute. Daily आपकी body वो एक stress ले रही है, and plus कुछ लोग जो highway पे चलाते हैं बहुत हाई स्पीड होती है. सो हाई स्पीड में जब चलाते हैं तो सिंस हमारी जो बॉडी है इट इज मेजॉरिटी वाटर, हमारा बॉडी भी उसी स्पीड से आगे जाती है. सो हमारा हार्ट एंड हॉर्मोन्स एंड ऑल द फ्लूइड आइटम्स लाइक ब्लड, लिम्फ,
उसका जो लेवल ऑफ नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस टू योर बॉडी. एंड अनोइंग टीचर फॉर एग्जाम्पल और अनोइंग बॉस जो आपको बिना किसी बात पे बहुत ही ज्यादा तंग करता है, या मे बी यू आर डूइंग योर वर्क राइट बट दैट पर्सन, योर टीचर, योर बॉस इज नॉट एक्नॉलेजिंग यू, आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता. तो दैट ऑल्सो कम्स इन एक्यूट स्ट्रेस. बैड स्टडी स्केड्यूल है, आप रात भर उठ रहे हैं और सुबह आप सोते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी ऐसे बनी हुई है कि आपको 10 बजे सो जाना है एंड सुबह उठ के आपकी बॉडी वापस एक्टिवेट होने लग जाती है. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होता है, सुबह आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी. बट आप अननेचुरल अपना स्केड्यूल करते हैं खाने का भी, क्योंकि आप रात भर उठेंगे तो आपको भूख लगेगी, आप कुछ खाएंगे. एंड स्लीपिंग के टाइम पे हमारी बॉडी एक्चुअली क्या होती है, रीजेनरेट होती है. बॉडी उस समय हमारी साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी टॉक्सिन्स है, एक तो वो डिसॉल्व होता है एंड वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ जाता है, एंड ऑल्सो हमारे रिपेयर होती है, सेल्स रिपेयर होते हैं. सो पुअर स्लीप हैबिट्स हो गई आपकी, डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव फ्रेंड्स हो गए, ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस होता है. आपको चोट लग गई नी में एंड देन क्रॉनिकली यू आर हैविंग दैट पेन इन योर नी, आप सही से चल नहीं पाते, अपने फ्रेंड्स के साथ जा नहीं पाते बाहर. सो दैट आल्सो लीड्स इन अ क्रॉनिक हेल्थ, क्रॉनिक स्ट्रेस. अभी थोड़ा सा फिजियोलॉजी आई हैव एडेड, इसका बहुत डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा ही मैं इसमें बताती हूँ कि क्या स्ट्रेस जब होता है कौन सा हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो सबसे ऊपर आप लेफ्ट फिगर में अगर आप देखेंगे तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, दो यहाँ पे ग्लैंड्स हैं. Hypothalamus is called as master gland. Master gland as in वो सबको कंट्रोल करता है. It's a master of all the glands. Now, whenever you are stressed out, hypothalamus सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है. वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि डायरेक्टली एड्रीनल ग्लैंड्स जो आपके किडनी के ऊपर होते हैं उसको इम्पैक्ट करती है. एंड एज अ रिजल्ट कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं. Now this cortisol is directly related to इसका लेवल अगर हाई है ब्लड में cortisol का, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई है. So cortisol का लेवल in your blood is directly proportional to how stressed out you are. अब फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में cortisol लेवल हाई हो गया है, तो see the figure on the right hand side. ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट करेगा? So brain will be, you will have difficulty in concentrating, anxiety, depression, irritability, mood, and mind fog. Mind fog is suppose you are working on something, आप लैपटॉप में बैठे हैं, आपके सामने असाइनमेंट है, आपको दिख रहा है कि क्या करना है, बट स्टिल आपका माइंड फोकस नहीं है. लाइक यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट बट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. दैट इज कॉल्ड माइंड फॉग. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यू विल हैव हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. सो दैट इज ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट. जॉइंट्स एंड मसल्स में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन. तो इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन का मतलब है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पेन कंडीशन. आपको टेंशन ज्यादा हो जाएंगी, मस्कुलर टेंशंस, एक्स, पेन्स, मसल टाइटनेस. इम्यून सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. आपका डिफेंस मैकेनिज्म डाउन होता चला जाएगा. आपका रिस्क ऑफ बिकमिंग इल बढ़ जाएगी और रिकवरी टाइम भी बढ़ जाएगा. अगर सपोज कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है, आप वही 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक होंगे. स्किन हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, डल ब्रिटल हेयर, ब्रिटल नेल्स. और आपका जो स्टमक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाएगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, पेन एंड डिस्कम्फर्ट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका डिक्रीज हार्मोनल प्रोडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज इन लिबिडो, इंक्रीज इन PMS सिम्टम्स. तो सिर्फ एक कॉर्टिसोल से, सिर्फ एक स्ट्रेस से, कॉर्टिसोल कैसे रिलीज हुआ, आपके सारे सिस्टम्स अफेक्ट हो गए. Everything is being affected. So you have to be very cautious not to let that cortisol level be high in your blood for longer duration of time. This is the same thing. इसमें बस नाम दिया हुआ है, इसमें बस hormones की name है. So this is called as HPA axis, how hypothalamus affects anterior pituitary and how it affects adrenal cortex and how cortisol is released. So this is what it talks about, stress and hormone release. Now let's talk about what are the stressors. तो आपको stress हो रहा है, क्यों हो रहा है? Stressors are the factors which cause stresses.
अब स्ट्रेसर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल मतलब आपको फिजिकल को चोट लग गई है, या फिर किसी ने पिंच किया है, या फिर मस्कीटो बाइट है, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्ट्रेसर। वर्क से रिलेटेड हो सकता है, बहुत ही बहुत ज्यादा टाइट डेडलाइन है कोई, या फिर बहुत ही ज्यादा हैवी वर्क है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिली में, या फिर बहुत फाइट्स होती हैं, या फिर एग्जामिनेशन। सो दीज आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेसर्स। नाउ स्ट्रेसर्स कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, एनीथिंग, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो द लेफ्ट फिगर सेज कि स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग स्ट्रेस फैक्टर, जिसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। जब वो स्ट्रेसर चला जाता है, आप फिर भी थोड़ी देर तक एंजाइटी स्टेट में रहते हैं, इवन व्हेन दैट स्ट्रेसर इज गॉन। सो यू कैन इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग, आपके सामने टाइगर आया, टाइगर इज अ स्ट्रेसर, पर जब टाइगर जाएगा आप सडनली नॉर्मल नहीं होंगे, यू विल टेक लाइक मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स फॉर पीपल, लाइक कुछ लोगों को तो 1-2 दिन भी लग सकते हैं। सो दैट इज एंजाइटी। सो स्ट्रेसर्स जाते हैं तो भी आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं हो पाती है। सो दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर लेफ्ट जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है वो परफॉर्मेंस है, और राइट वाला है वो स्ट्रेस है। तो अगर आप ये ग्राफ की लाइन देखेंगे तो क्या होता है कि जब आप धीरे 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 स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ रहा है। सो इफ यू सी दैट लाइन इज गोइंग अप, दैट ग्राफ इज गोइंग अप, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, एंड देन इट इज कॉल्ड हेल्दी टेंशन। उसके नीचे का जो एरिया है वो हेल्दी टेंशन में। देन आप आते हैं ये शेडेड एरिया में, जो कंफर्ट जोन है, फिर आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, विच मीन्स नाउ यू आर एबल टू टैकल स्ट्रेस इजिली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगले दिन एग्जामिनेशन है, आप 12 बजे तक भी उठ रहे हैं, बट दैट इज नॉर्मल फॉर यू, दैट इज न्यू नॉर्मल फॉर यू। बट आफ्टर दैट आप फिर भी अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हम्प तक आ जाएगा। हम्प इज लाइक द मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ आपको आ गई है फटीग। इसके बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो आप एग्जॉस्शन की तरफ जाएंगे, यू विल गेट एग्जॉस्टेड, एंड उससे ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया तो इल हेल्थ एंड फाइनली ब्रेक डाउन। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। People don't know when to stop. They will just keep on stressing their body out, stressing their mind out, without knowing कि break कब लेना है, without knowing कि कितना उनकी capacity है. Instead of growing gradually, instead of taking their capacity धीरे धीरे बढ़ाने की जगह, they do it really fast. तो इसलिए उनको बहुत जल्दी exhaustion की वो आ जाती है, level of exhaustion and ill health, उनका health भी खराब होता है। तो ये जो सिम्टम्स है स्ट्रेस के, नाउ यू कैन सी अगर आपको स्ट्रेस है कि नहीं, आप ये सिम्टम्स देखिए एंड देन सी द परसेंटेजेस ऑफ इट। सो जो फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे, फटीग इज यू आर स्लीपिंग गुड 7 to 8 hours बट स्टिल यू फील कि मॉर्निंग में यू स्टिल फीलिंग टायर्ड, हेडेक्स फॉर नो रीजन, आपने खाना भी अच्छा खाया है एंड देन यू फील लाइक यू वर नॉट एक्सपोज टू लॉट्स ऑफ सन बट स्टिल यू आर हैविंग हेडेक्स, अपसेट स्टमक, आपको डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर ब्लोटिंग हो रही है, मसल टेंशन, आपकी मसल टाइटनेस लगेगी, आप वर्कआउट करेंगे तो लगेगा कि आपकी वर्कआउट का लेवल इज गोइंग डाउन, चेंज इन एपेटाइट, पहले आपको बहुत अच्छी भूख लगती थी, भूख कम हो गई, या फिर भूख पहले से बहुत बढ़ गई। सो देयर आर चेंजेस गोइंग ऑन। टीथ ग्राइंडिंग, मोस्टली इट अकर्स ड्यूरिंग योर स्लीप, तो आप जब सोते हैं तो काफी लोग की टीथ ग्राइंडिंग होती है, तो वो स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेस में। Change in sex drive, feeling dizzy, mostly it happens when you are sitting and suddenly standing. तो वो conditions अगर आपको हो रही है, तो these are symptoms showing that you are stressed out. और वो stress आपको पहचानना है क्यों हो रहा है, is this stress because of you are taking less sleep or is this stress because of emotional thing. अब psychological symptoms देखते हैं, you get easily irritated or angry, you feel nervous, lack of energy, there's always lack of energy, and जब बहुत high हो जाता है तो there is a feeling as though you can cry. तो मतलब जब आप अकेले रूम में आते हैं तो you feel so stressed out that you feel like crying. So all these symptoms means that somewhere or the other you are facing stress. अब you have to recognize what type of stress it is. अब ये excess stress के symptoms है, those were symptoms जब आपको stress start हो रहा होता है, अब ये है excess stress हो गया, तो आपको डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, ये बहुत कंप्लेंट्स आती है हमारे पास में बहुत। इवन व्हेन यू आर यंग यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स बहुत इजीली, आप नाम भूलने लग जाएंगे, सडनली आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ रखी है भूलने लग जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो योर माइंड
आपकी ब्रेन सेल्स जो है उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले थे, सो दैट विल स्टार्ट टू हैपन. फ्रीक्वेंट एक्स एंड पेन्स हो जाएंगे, सो इट कैन बी योर लोअर बैक पेन, या फिर इवन फ्रोजन शोल्डर लोगों को होता है, हेडेक्स, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे. स्टिफ जॉ, नेक, लैक ऑफ एनर्जी और फोकस, ट्रबल स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच, तो अगर आप सोते हैं तो आपको उठने का मन नहीं करता, या फिर रात में आप एक बार पानी पीने के भी लिए उठ रहे हैं तो यू कैन नॉट गो बैक टू स्लीप वेरी इजीली. सो ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो प्रॉब्लम्स व्हिच शोज दैट यू हैव एक्सेस स्ट्रेस. वेट लॉस और गेन, सडन वेट लॉस और गेन सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है, but even if you're having weight loss or gain in the 1 to 3 months of gap, that shows you have stress. Upset stomach, and use of alcohol or drugs to relax. So lots of people, they take alcohol or drugs just so that they can feel that sanity of mind, they can feel ki, you know, they are living their life. So agar aisi aapko feeling aane lag gayi hai while taking drugs or alcohol, it means you have to make sure where the stress is. अब ये सब होने के बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है स्ट्रेस का. आपको स्ट्रेस है, ठीक है, आपको पता लग गया, आपको सिम्टम्स दिख गए कि एक्सेस स्ट्रेस हो रखा है तो क्या सिम्टम्स है, बट फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको चलते रहने दिया, तो अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी एक्सेस, ओवरवेट से भी ज्यादा थोड़ा हाई लेवल पे वेट है, डिप्रेशन और एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम सच एज एक्ने और एक्जिमा, menstrual problem or autoimmune condition. So if you are not managing your stress on time, these all things will definitely impact you. So you have to be cautious beforehand. अब होता है कि stressors 4 तरह के होते हैं. There are 4 type of stressors academic sectors में होते हैं. एक तो होता है टाइम स्ट्रेस. ये बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स में होता है कि वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश दिस ऑन टाइम. तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग टू फिनिश दैट थिंग ऑन टाइम, वी फोकस ऑन वरिंग अबाउट वेदर वी विल बी फिनिशिंग इट ऑन टाइम. सो ये वाला स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है. तो वो क्या करते हैं, उनका जो फोकस होता है, उनका जो फोकस ऑन स्टडी, वो मूव हो जाता है ऑन वरिंग, and that's where the performance starts to decrease. एक होता है anticipatory stress. What if something will go wrong? What if रात में हम सो रहे हैं, what if अलार्म नहीं बजा तो रात भर नींद सो नहीं पाएंगे. What if मैंने ये चैप्टर छोड़ा है, what if उसमें से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ गए तो जो उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है उसमें भी उनको डाउट आ जाएगा. सो एंटिसिपेटरी स्ट्रेस भी एक ऐसा चीज है जो आपकी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करता है. सिचुएशनल स्ट्रेस, मेजर मिस्टेक और इमरजेंसी, जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता. तो इसमें काफी लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं, आपने अपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा, उनको इसमें भी स्ट्रेस रहता है, जिसपे उनका कंट्रोल नहीं रहता, उसमें भी वो लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो व्हाट कैन वी डू. And encounter stress होता है stress occurring when you interact with people who you are not feeling well or you don't like. For example, ये वाला stress is not very much strong for students because students की life में first 2 stressors बहुत ज्यादा impact डालते हैं, but still 4th stress होता है, काफी लोगों को होता है जो बहुत ही ज्यादा sensitive होते हैं. If they don't like any person, किसी दिन एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर वो क्लास में जा रहे हैं, उनको टीचर ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे टीचर अच्छा नहीं लगता है, मे बी दैट टीचर इज कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग दैट चाइल्ड वर्बली और कॉन्स्टेंटली नॉट एक्नॉलेजिंग जो भी वो पॉजिटिव करता है, या फिर बुलिंग. तो जब ऐसी कोई भी चीज होती है तो जो स्टूडेंट है वो इनकाउंटर स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, जहां पर उसको इस चीज से डर लगने लग जाता है कि व्हाट इफ वो इंसान मेरे सामने आ जाए, तो इससे भी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का डाउन हो जाता है. सो दीज आर लाइक 4 काइंड ऑफ स्ट्रेसेस इन एकेडमिक सेक्टर. अब हाउ कैन यू मैनेज द स्ट्रेस? तो फर्स्ट, डिजायर फॉर योर हेल्थ में स्ट्रेस भी आ जाता है. इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, देन डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट. ये भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में लिखा गया है. उन्होंने ये बोला था कि आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको पता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप उससे बाहर निकलने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, देन नेवर क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट, एंड हियर व्हाट यू विल बी लूजिंग योर हेल्थ. अब ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आई एम डिस्कसिंग कि क्या वर्क करना चाहिए आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली. जस्ट डोंट फोकस ऑन गेटिंग गुड
academic scores, because maybe आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लैंड कर जाएं, बट लाइफ बहुत लंबी है. लाइफ में आपको सिर्फ academic scores आगे नहीं लेके जाएगा. So always do other things. What you can do is read books not related to your curriculum. So अगर आपने कोई भी subject लिया, if you are a science student or if you are a defense student, don't just focus on getting or reading books जो आपको डिफेंस के एग्जामिनेशन में आपको फुलफिल कराएगी, या फिर साइंस के किसी फील्ड में. रीड अदर थिंग्स, रीड अबाउट ऑटोबायोग्राफीज, रीड अबाउट पीपल, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी है, बिकॉज उनका पूरा जो समरी है इट इज इन अ बुक. So whatever they have lived throughout their life, their experience, you can just read in a week and learn about how to deal with life. So read books which are not related to curriculum. Know more about your surroundings, which means you have to know more what is going on with your family, with your friends, and be more empathetic. Empathetic means कि कैसे आप दूसरों की फीलिंग्स को इतना समझ सकें कि वो लगे कि वो आपकी फीलिंग है. So that is called empathy. जब आपकी हाई एम्पैथी होगी, आप अपने करिकुलम, अपने एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्लस आपकी जो जॉब होगी, जो आपकी जो वर्क लाइफ होगी, उसके अंदर भी यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. And also very important thing is stay in present. Don't think a lot about past, don't worry about future. Focus, stay in present. Work towards a spiritual development. So spirituality और religion में difference है. Spiritual होता है अपने spirit को जानना, अपने आप को जानना कि क्या है आपका, what are your basics development, और not cellular but आपके thought process कैसे होते हैं, आप कैसे किसी situation में react करते हैं. Also knowing that you are very powerful. We are spiritual, हम बहुत spiritual होते हैं, हम बहुत energetic होते हैं, but because of lots of things surrounding us, हमारा vibration थोड़ा lower frequency में होता है. That's why we are not able to understand our capacity, our energy. And always stay connected with nature. तो आप जब नेचर से कनेक्टेड होंगे, हम भी 5 वाइटल एलिमेंट से बने हैं, पंच महाभूत से हम बने हैं, उसी से नेचर बना है. सो बेसिकली वी आर ऑल कनेक्टेड, एवरीवन इज कनेक्टेड, यू एंड मी आर कनेक्टेड, वी एंड नेचर आर कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. बस सबकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. कोई डिफरेंट हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा मिडिल पे, कोई थोड़ा लोअर पे. सो ऑलवेज ट्राई टू वाइब्रेट ऑन हायर फ्रीक्वेंसीज एंड स्टे कनेक्टेड विद नेचर. Now there is a rule of practice. आप जिस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे. So that is what the rule is. Whatever you practice, you become master of that skill. Now you have to decide कि आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, डिस्ट्रैक्शन की या फिर कॉन्सेंट्रेशन की. अगर आप डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको सडनली मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया, and you are like totally acting as a slave of your mobile and suddenly checking कि क्या notification आया है, आप distract हो रहे हैं, आप distraction की practice कर रहे हैं, because that will not happen just once, it will keep on happening. तो आप दिन में imagine करिए, if you are in a day time, you are doing it for 3 or 4 hours. आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 महीना किया, कई बार तो लोग सालों तक करते हैं. आपने किस में मास्टरी वो की है, इनहैंस आपकी किस मास्टरी हो रही है, डिस्ट्रैक्शन. तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कोई भी काम करने जाएंगे, कहीं पर भी आप किसी से बात करने जाएंगे, आपको 2 मिनट में माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद दैट कॉन्फिडेंस. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज. जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपके सामने पैनलिस्ट बैठते हैं, आप इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. अब उस समय क्या डिस्ट्रैक्शन आएगा, उस समय डिस्ट्रैक्शन आएगा कि आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको क्या बोला, आपके फ्रेंड्स ने आपको 3 महीने पहले क्या बोला था कि दिस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, इंटरव्यू इज वेरी डिफिकल्ट. सडनली वो थॉट्स आने शुरू होंगे. क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्टेड शुरू से रखा है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की कॉन्सेंट्रेशन की. तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है? वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू कॉन्सेंट्रेट. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट फॉर्मल कोर्सेज? जैसे आपको साइंस पढ़ाई जाती है, आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, कभी आपको स्कूल में पढ़ाया है कॉन्सेंट्रेशन का, कभी अलग से पीरियड हुआ है? कभी नहीं पढ़ाया है, राइट? बट हर जगह जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं, हर समय बोला जाता है कि ये काम करना है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम करो. बट जब आपको सिखाया ही नहीं गया है, तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन से काम करेंगे, राइट? सो यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. आपको कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है, ये आपको आर्ट सीखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो 2 चीजें फोकस करेंगे हम लोग. एक होता है अवेयरनेस.
और एक होता है माइंड, टू थिंग्स. व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस है एक टॉर्च. टॉर्च जैसे आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं, आप जहां पर भी टॉर्च की लाइट डालेंगे वो एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा, राइट? तो ये समझिए, टॉर्च इज अवेयरनेस एंड जो अंधेरा कमरा है दैट इज योर माइंड. अब आप जहां पे टॉर्च फेंकेंगे वो एरिया विल बी इल्यूमिनेटेड. तो आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं. कौन कौन से कॉर्नर्स होते हैं आपके माइंड में? फूड का कॉर्नर हो सकता है, मेमोरीज का कॉर्नर हो सकता है, डिजायर्स, कोई कार खरीदनी है, गैजेट खरीदना है, उसका कॉर्नर हो सकता है, आर्ट के लिए कॉर्नर हो सकता है, साइंस के लिए हो सकता है, म्यूजिक, हेट्रेड, जेलसी, सबके कॉर्नर्स होते हैं. अब क्या होता है, जहां पर भी आप टॉर्च की लाइट डालेंगे वो वाला एरिया जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा. सो आपको कहाँ पे लाइट डालनी है? जहां पर आप चाहते हैं कि जहां पे आपका ग्रोथ हो. तो फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रोथ चाहिए इन योर एकेडमिक, आपको चाहिए कि आपका एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा रहे, तो आप उसी में टॉर्च से लाइट डाल के रखिए फॉर एटलीस्ट 1 hour or 2 hour. फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन वॉट यू आर डूइंग. और प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं आप? सेल फोन को साइड में रखा, उसका नोटिफिकेशन उसको एयरप्लेन में डाला एंड पूरा साइड नोटिफिकेशन सब लैपटॉप से बंद कर दिए. नाउ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज. 45 minutes फोकस करके टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, अगेन कम बैक एंड फोकस. तो क्या होगा, शुरू शुरू में 10 मिनट के बाद ही आपको बहुत ज्यादा अंदर से फीलिंग आएगी, लेट मी चेक माई मोबाइल, लेट मी चेक व्हाट इफ समथिंग आई एम मिसिंग. बट विद टाइम यू विल बिकम सो एक्सपर्ट that up without any break या without getting distracted you will be able to concentrate. So here हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइंड इधर उधर नहीं भटकता, हम अपनी अवेयरनेस को इधर उधर भटकाते हैं. बट कंसंट्रेशन के टाइम पर जब हमें प्रेजेंट में रहना है, हम अवेयरनेस को एक डायरेक्शन में रखेंगे जहां पे हमें पढ़ाई करनी है, या फिर अगर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो अगर वो हमसे कोई बात कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ हैं तो हमारा अवेयरनेस उनको सुनने में होना चाहिए. वी शुड नॉट थिंक एनीथिंग एल्स सराउंडिंग अस. सो दीज आर टू बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू फोकस. और इससे स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है. बिकॉज क्या होता है, स्ट्रेस मेजरली इसलिए होता है बिकॉज वी थिंक नेगेटिव थॉट्स. जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहेंगे आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड विल बी ऑक्यूपाइड विद द प्रेजेंट सिचुएशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कंट्रोल योर स्ट्रेस, थिंकिंग और एंजाइटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. We are not actually physical being having spiritual experiences, but we are spiritual being having physical experience. So this is very important thing. You should learn this, keep this in your mind, that we are beyond just being physical, beyond just doing whatever we are doing right now. हमारा level बहुत high है. And इस level को समझने के लिए योगा के कुछ चीजें हमको introduce करनी पड़ेगी life में. तो जो योग होता है इसके 8 levels होते हैं. It is not just physical postures, it is not just meditation. Actually ये 8 होते हैं. तो इसमें होता है पहला यम. यम के भी फर्दर 5 लेवल्स होते हैं, 5 लिम्स होते हैं. बट यम होता है कि कैसे आपको मॉरली रहना है, कैसे आपको अपना कंडक्ट रखना है, दैट इज यम. देन नियम इज ऑब्जर्वेंसेस, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को, कैसे आप अपना बॉडी क्लीन रखेंगे. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रूल्स यू हैव टू फॉलो, दैट्स कॉल्ड एज नियम. देन इज आसन. आसन होते हैं फिजिकल पोस्चर्स. जो भी आप, जैसे कई बार अगर आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज डेज यू आर सीइंग एवरीवन इज डूइंग आसना. कोई भी उसको आसन करके एंड देन दे विल नेम इट कि हमने योगा किया है. बट जो योगिक आसन होते हैं उसका फोकस होता है कि बॉडी में हमारे जो सटल चैनल्स, मतलब बहुत ही एक्सरेज में या फिर मेडिकल साइंस को नहीं बता सकता है, बट हमारे अंदर नाड़ियां होती हैं. वो नाड़ियां पाइपलाइन की तरह वर्क करती हैं. जैसे ब्लड पाइप से, सॉरी, पानी पाइप से जाता है, ऐसे ही हमारी नाड़ियों से एनर्जी सारी मूव होती है. जब हम आसन करते हैं तो सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस हैं इस नाड़ियों में वो क्लियर आउट हो जाते हैं. सो आसन बेसिकली ब्लॉकेज को हटाने के लिए होता है. एंड देन कम्स प्राणायाम. प्राणायाम इज माइंडफुल ब्रीदिंग. बहुत टाइम के प्राणायाम होते हैं. कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, शीतली हो गया, शीतकारी हो गया. सो डिफरेंट बॉडी के हिसाब से डिफरेंट प्राणायाम करने होते हैं. क्या आपको बहुत ज्यादा चीज बॉदर करती है उसको हटाने के लिए प्राणायाम करते हैं. तो प्राणायाम इज ऑल साइंस ऑफ ब्रीदिंग. कैसे आपको ब्रेथ लेनी है और कैसे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है वाइल ब्रीदिंग. फिर होता है प्रत्याहार. प्रत्याहार इज आप आहार जैसे लेते हैं, अंदर की तरफ खाते हैं आहार को. आपको बहुत सारे आहार दिख रहे खाते हैं,
pratyahar is you are removing everything and turning towards yourself. तो प्रत्याहार में आप अपनी तरफ ज्यादा आते हैं, दुनियादारी से थोड़ा दूर हट जाते हैं. So that is also part of yoga. और mostly students को तो ऐसा करना ही पड़ता है कि when they are studying a lot, they have to make sure that they are not thinking a lot about whatever is happening in surrounding areas. Instead, they are thinking more or concentrating more in their studies. They are concentrating more on whatever have been taught, or maybe they are concentrating just on their health. तो जितना ज्यादा वो अपना ध्यान अपनी तरफ लेके आएंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ लेके आएंगे, उतना ज्यादा वो डिसिप्लिन्ड होते जाएंगे. Then come dharana. Dharana is concentration. So concentration on anything. जब योगिक प्रैक्टिसेस में हम धारणा करवाते हैं तो धारणा कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सारा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए. सो आज्ञा चक्र होता है जो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में होता है. सो आप फोर्सफुली काइंड ऑफ कंसंट्रेट करते हैं. तो फोर्सफुली का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइडेड मेडिटेशन करा रहा है, एंड वो आपको बोलता है कि यू हैव टू गैदर ऑल योर अवेयरनेस एंड थिंक जस्ट अबाउट मे बी योर ब्रेथ, or think about just in the area in between your eyebrows, तो वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, वो आपको काइंड ऑफ नॉट फोर्सफुली बट वो आपको डायरेक्ट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड धारणा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. नाउ ध्यान, while you are doing this, while for example you are focusing on your breath, suddenly आपका जो 1 सेकंड का टाइम होगा, 2 सेकंड का टाइम होगा, you will be lost, you will be totally in blissful state. एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पता नहीं लगता टाइम का. दैट इज ध्यान. बेसिकली दैट इज मेडिटेशन. जब आप नॉट वॉलंटरली, इनवॉलंटरली आपका सडनली ध्यान लग जाता है किसी चीज में. सो दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. एंड समाधि इज अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस. वो हायर स्टेज है. दैट कम्स व्हेन यू आर परफेक्ट विद आसनास, विद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो ग्रेजुअली व्हेन you are very good with all the other 7 limbs of yoga, you come to the state of samadhi, which is ultimate blissfulness. अब ये इमेज जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं. I don't know if I will be able to go in that much depth about it, but ये इमेज मैंने बहुत ही सिंपल लिया है. हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं. चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स, जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जीज होती है. एंड ऑल्सो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पे आपके जो नर्व प्लेक्सेस होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं. सो 7 मेजर चक्र हैं और बाकी माइनर चक्र्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, बट हम लोग मोस्टली इन योगा फोकस ऑन दिस 7 चक्रास. व्हाई? बिकॉज यहाँ से 3 नाड़ियां निकलती हैं. मेन नाड़ी आपके ये स्पाइनल कॉर्ड्स में, आपका जो वर्टिब्रा है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी बेस से लेकर आपके पूरा यहाँ पर टॉप ऑफ योर हेड, वहां तक होते हैं चक्रास. तो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी होती है वो बेस ऑफ योर स्पाइन, आपके जो रीढ़ की हड्डी का बेस है, वहां पर डॉर्मेंट तरीके से रहती है. वहां पर वो डॉर्मेंट लाइक इनएक्टिव फॉर्म में रहती है. इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए रहती है बिकॉज हम लोग को अवेयरनेस नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारी जो एनर्जी है डॉर्मेंट में, इनएक्टिव फॉर्म में है, और हम ना ही उसको एक्टिवेट करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज it always be in that, mostly in that dormant state throughout our life. but जो yogis होते हैं या फिर जो बहुत not exactly yogis but people who practice yoga, अब वो योगा बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है. मे बी उनको नॉलेज नहीं है योगा की, बट स्टिल उनकी डे टू डे लाइफस्टाइल में आता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को हर्ट नहीं करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग ट्रूथ. तो ऐसे लोग योगी कहलाते हैं. ऐसे लोग योगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको थोड़ी सी कुंडलिनी की जो एनर्जी है वो फील होती है. सो इफ यू विल सी, सबसे नीचे का जो चक्र होता है वो रूट चक्र होता है, एंड उसको मूलाधार बोलते हैं संस्कृत में. वो आपको फीलिंग दिलाता है आई एम की. वो आपका जो सेंस ऑफ बीइंग उसको एक्टिवेट करता है. तो मोस्टली जिनका रूट चक्र एक्टिव नहीं है या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग्स रहेंगी लाइफ में हमेशा. उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि मेरे पास से ये चला गया तो क्या होगा. सो द सेंस ऑफ बीइंग इज वेरी लो इन देम. सेक्रल चक्र होता है, वो बताता है आई फील. आपकी फीलिंग्स को ज्यादातर वो कॉन्सेंट्रेट करता है, कैसे आपकी फीलिंग्स हैं. तो आप अपने जो ये जितने भी चक्रास हैं
इससे पता लगा सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका चक्र है, वहां पे आपको फोकस करना है। तो वाई चक्रास पे फोकस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपके एनर्जी सेंटर्स है। मोस्टली अब कोई भी बीमारी होती है फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ये आपके चक्रास प्रॉपरली रोटेट नहीं हो रहे होते हैं, इसीलिए होती है। तो आप अगर सारे चक्र देखेंगे तो आपका पहले रीढ़ की हड्डी के बेस में होता है, फिर जो सेकंड चक्र होता है नीचे से, वो आपकी नाभि और रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। देन जो सोलर प्लेक्सिस है वो आपकी नाभि पे होता है। देन दिस हार्ट चक्र आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट होता है। दिस थ्रोट चक्र इज एग्जैक्टली वेयर योर थायराइड और थ्रोट इज। थर्ड आई चक्र आपके दोनों आईब्राउज के बीच में होता है। और क्राउन चक्र जो होता है वो आपके टॉप ऑफ योर स्कल में होता है। दीज आर द मेजर 7 चक्रास। एंड इफ यू विल फील कौन सी आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी से एसोसिएटेड है, रूट चक्र से आई एम, सेक्रल से आई फील। सोलर प्लेक्सिस वाले जो होते हैं, मतलब अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत एम्बिशियस होंगे, आपने जो काम सोचा है वो आप एकदम करने की कोशिश करेंगे, तो सोलर प्लेक्सिस हो गया। हार्ट चक्र इज आई लव, आप लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, आपको फीलिंग्स उनकी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। थ्रोट चक्र इज आई स्पीक, जो आप सोचते हैं वो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो काफी लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है जिनका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं टू एक्सप्रेस, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बिकॉज उनको वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर वो बोलना कुछ चाहते हैं निकलता कुछ और है, या फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होता है, तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे होगा? कुछ प्राणायाम होते हैं, उज्जयी प्राणायाम फॉर एग्जाम्पल, वो उसको एक्टिवेट करता है। या फिर आप कुछ कुछ बंध लगा सकते हैं। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज हो सकता है बहुत सारे टर्म्स न्यू होंगे। कुछ आसन होते हैं जिससे आप थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। इफ लाइक यू लाइक टू रीड अबाउट चक्रास, वंस वी आर डन विद दिस सेशन, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए एंड लर्न मोर अबाउट चक्रास, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर थर्ड आई चक्र जो होता है वो है आईसी। आईसी इज इंट्यूशन। सो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है गट फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप किसी सिचुएशन में जा रहे हैं एंड सडनली आपको अंदर से एक वॉइस आएगी कि नहीं, दिस सिचुएशन इज नॉट करेक्ट, बट स्टिल आप चले जाते हैं उस सिचुएशन के लिए या फिर उस कोई भी काम को करने के लिए। तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, या हाँ ये बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड योर इंट्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर गट फीलिंग। जिनका थर्ड आई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है या एक्टिवेटेड होता है, उनको इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं एंड देन लाइक दे सी थिंग्स क्लियरली। सो आपको फोकस करना चाहिए कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो थोड़ा सा आप जागृत करके रखें। एंड फॉर दैट यू कैन डू त्राटक। त्राटक इज व्हेन यू हैव, आप कैंडल जला सकते हैं, या फिर जब जैसे आप पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, तो जो फ्लेम आता है उस फ्लेम में जो ब्लू पार्ट होता है उसमें आप फोकस करिए फॉर प्रॉब्ली 1 minute. So focus on that flame and then close your eyes and try to bring that flame अपने eyebrows के बीच में। तो जो आपने फिजिकली फ्लेम देखी थी, फिजिकली जो आग का वो देखा था, उसी इमेज को आप दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आइए एंड कीप ऑन सीइंग दैट इमेज। सो दैट इज कॉल्ड त्राटक। सो यू सी बाह्य त्राटक व्हेन यू सी इट बाहर फिजिकली एंड देन यू सेम रेप्लिकेट इट बिटवीन योर आईब्रोज। तो इससे आपका क्या होता है, आपका थर्ड आई चक्र आल्सो बिकम्स एक्टिवेटेड। एंड देन क्राउन इज आई नो। आई नो मतलब कि आपको बहुत सारी सिचुएशंस बहुत इजीली ब्रॉडली समझ में आएंगी। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कभी भी हो रही है, आपको बिगर पिक्चर दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव इन रिलेशन टू एकेडमिक सिनेरियो। आप स्टक हैं, क्या सब्जेक्ट लेना है, स्टक हैं कि हमें क्या किस डायरेक्शन में जाना है। जब आपका क्राउन चक्र थोड़ा सा एक्टिवेटेड होगा, आप एग्जैक्टली अपने आप को समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग ट्राई टू बिकम मोर स्पिरिचुअल, व्हिच मींस ट्राई टू नो योरसेल्फ मोर। अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं बट आप फिर जॉब ऐसी ले लेते हैं, सपोज आप इवेंट मैनेजर बन जाए बट यू आर इंट्रोवर्ट पीपल डोंट लाइक टू बी इन पीपल। तो अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है और आपने गलत जॉब ले लिया, तो you will never be satisfied with it and then you will always be thinking that I have not done a right step and फिर time निकल जाता है कई बार। So know about yourself and try to see bigger picture. That's why when your crown chakra is activated, जब आपका सहस्त्रार चक्र बोलते हैं संस्कृत में, सहस्त्रार चक्र जब आपका एक्टिवेटेड होता है तो आप ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। So that helps a lot in everything, in your whole life and also in selecting your anything in life. Academic excellence के लिए भी it's very good. अब ये है सिम्टम्स। नाउ ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में है,
बहुत ही लेमन सिम्टम्स हैं, एंड एक्चुअली जिनके चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते हैं उनको ये सिम्टम्स होते हैं. सो इफ यू सी द चक्रास disbalanced symptoms chakras ke, you feel cold often, cold limbs even when you wear warm clothes. तो अगर आपको ऐसा होता है, एक तो होता है situation when you are anemic, that is also there, but अगर आप anemic नहीं हैं and you feel कि आपके हाथ पैर बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं, आप गर्म कपड़े भी पहन रहे हो तो भी ठंडे हो रहे हैं, it means आपका जो energy center है, any of your chakras are not acting perfectly, उसका जो vibrational energy है वो perfect नहीं है. अनकंफर्टेबल फीलिंग इन वूम एरिया, तो फिर अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल हो रहा है या फिर इवन इन मेल्स दे फील लाइक कुछ अजीब सा अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो रहा है उनको बिटवीन द नेवल एरिया एंड बिटवीन द बेस ऑफ द स्पाइन, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द चक्रास इज हैविंग एनी प्रॉब्लम. प्रेशर एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग इन योर बेली. नाउ यू हैव टू रियलाइज कि अगर आपने खाना गलत खाया है, एक दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है, सपोज यू आर कमिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, सडनली आपको पेट में कुछ अजीब हो रहा है, तो कई बार होता है योर चक्रास आर नॉट वेरी एक्टिवेटेड, एंड देन पेन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन वरीड, तो पैनिक अटैक आता है, एंग्जाइटी अटैक जिसको हम कई बार बोलते हैं. तो उन लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है, उन लोगों को अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना चाहिए. तो वो आसन करने चाहिए जिसके अंदर जैसे गौमुख आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, जिसमें उनका जो चक्र है, हार्ट चक्र खुल के आता है. सो दैट्स वेयर दे शुड वर्क ऑन. या फिर आपको टेंशन थ्रोट एरिया में होती है, या फिर आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो स्टार्ट डूइंग बंधास, स्टार्ट डूइंग लॉट्स ऑफ प्राणायाम्स. तो आपका जो टेंशन वाला पार्ट है इन योर थ्रोट, दैट विल बी रिलीव्ड. अगर आपको माइल्ड हेडेक्स होते हैं, प्रेशर इन बिटवीन आईब्रोज, दैट मीन्स योर आज्ञा चक्र इज नॉट वर्किंग. तो फोकस ऑन डूइंग त्राटक, फोकस ऑन गोइंग इन नेचर, फोकस ऑन टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ पीपल, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प. और बहुत हैवी हेडेक्स हो रहे हैं, माइग्रेन्स हो रहे हैं, तो आपका सहस्त्रार चक्र जो क्राउन चक्र है, दैट इज नॉट बैलेंस्ड. सो ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको फील होते हैं, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ऑल चक्रास आर नॉट वर्किंग. और सारे चक्र को अगर बैलेंस करना है तो आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करिए. सूर्य नमस्कार सारे चक्र को कंट्रोल में लेके आता है. सो सूर्य नमस्कार बेसिकली जो हठ योग का स्कूल है, दे आर वेरियस स्कूल्स. जो हठ योग है वो 12 आसन से एक सूर्य नमस्कार का सेट बनता है, और सारे के सारे जो आसन हैं वो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं. इट विल वर्क ऑन योर लेग्स, it will work on all your chakras, it will work on all your hormones, neurotransmitters. तो you should practice सूर्य नमस्कार a lot. and जैसा आप नाम देख रहे हैं, इसका नाम है सूर्य नमस्कार. तो इसमें वार्मिंग एनर्जी आती है आपके अंदर, हीट आती है. सो बेस्ट टाइम टू डू इज जब सूरज उगने वाला होता है, क्योंकि जब सूरज उगता है तो उसकी एक साउंड होती है. हमारे ईयर्स कुछ ही साउंड सुन पाते हैं. जैसा आपने सुना होगा, काफी जो एनिमल्स हैं, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली होती है, उनको पता लग जाता है. व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन साउंड्स जो नेचर प्रोड्यूस करती है जो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डेसिबल ही हमारे कान सुन सकता है, बट एनिमल्स कैन हियर इट. जब सूरज उगता है उसकी एक साउंड होती है, उस साउंड को कहते हैं ओम. वो ओम साउंड होती है. आप सुन नहीं पाएंगे, बट अगर आप कंसंट्रेशन से, सपोज आप अकेले या माउंटेन एरिया में हैं या फिर इवन अपने घर में हैं, आप छत पे जाइए और जब सनराइज होता है, जस्ट ट्राई टू फील द प्रेशर. देयर विल बी अ प्रेशर कमिंग ऑन टू योर बॉडी, क्योंकि ओम जो होता है वो वाइब्रेशंस है. तो जब ओम की वाइब्रेशन सन निकालता है, वो आपकी बॉडी में भी आती है. बट सिंस हम लोग या तो मोस्टली सो रहे होते हैं या फिर हम लोग कुछ अंदर होते हैं विद अदर थॉट्स, वी आर नॉट एबल टू फील दोज वाइब्रेशंस. ये जो सारी ओम की वाइब्रेशंस होती हैं, इट इज हीलिंग, इज वेरी हीलिंग फॉर अ बॉडी. ये कई बार तो आपका जो भी प्रॉब्लम बॉडी में आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी में होते हैं. जो सन एनर्जी है वो सबको बैलेंस करती है. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू डू सूर्य नमस्कार अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सन राइज होता है, आप बेसिकली काफी अपनी माइंड की एनर्जी इंक्रीज करते हैं, प्लस फिजिकल अगर कोई आपको डिजीज होने वाली है फ्यूचर में, आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई ट्राई टू डू लाइक फ्रॉम 5 to 10 सूर्य नमस्कार टू स्टार्ट विथ, और धीरे धीरे इसकी आप प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं. प्लस पीपल, बिकॉज आप बहुत पढ़ाई करते हैं, तो यू हैव टू सिट अ लॉट. एट टाइम्स यू आर
ईटिंग अ लॉट एंड सिटिंग अ लॉट, तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को बहुत मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है, तो उनका मोटापा बढ़ जाता है, राइट। सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्लस अगर आपका वेट गेन हो रहा है हार्मोनल किसी प्रॉब्लम की वजह से, थायराइड ग्लैंड डिसबैलेंस हो गया, आपका T4 T3 TSH बैलेंस्ड नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होने लग जाएगा, फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग होगी और आपका मेटाबॉलिज्म वापस ट्रैक में आ जाएगा। एज सून एज मेटाबॉलिज्म कम बैक ऑन ट्रैक, आपका जो वेट गेन हो रहा था बिकॉज ऑफ डिसबैलेंस्ड थायराइड ग्लैंड वापस बैलेंस आने लग जाएगा। So that's why you should focus on doing Surya Namaskar or any other asanas so that आपके hormones और neurotransmitters सारे के सारे balance हो जाएं, plus your brain also starts to become sharper। तो जो योगा होता है it actually makes your brain very sharp, makes your brain cells regenerate। यहाँ पे यूएस में बहुत स्टडीज होनी स्टार्ट हो गई हैं इसमें, वेरियस हार्वर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर डूइंग स्टडीज कि कैसे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनका माइंड, स्पेशली जब हम लोग एजिंग होती है हमारी, तो हमारे ग्रे सेल्स, जो ग्रे मैटर है, कम होने लग जाता है। बट जो मेडिटेटर्स होते हैं, अगर सपोज आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया और आपकी एज अभी हो गई है 40 या 50 एंड आपका जो ग्रे सेल्स है ब्रेन का वो कम हो गया है, आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए, विद इन लाइक 4 months और 5 months आपका वापस से बहुत ग्रे मैटर बढ़ जाएगा। सो ग्रे मैटर बढ़ने का मतलब है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी एंड आपकी जो फॉरगेटफुलनेस है वो सब कम हो जाएगी। सो दैट्स वेयर योगा किक्स इन। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योगा सम वे और द अदर। अब जो योगा का इफेक्ट होता है स्ट्रेस, वो देखते हैं क्या होता है। योगा स्टिमुलेट्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, वन इज सिंपैथेटिक एंड अदर इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी को कोई डेंजर सिचुएशन दिखती है। तो डेंजर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं कि यू वर लाइक जस्ट वॉकिंग एंड देन अ टाइगर केम इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका जो बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट, फाइट मतलब या तो लड़ेगी या भागेगी, उस सिचुएशन में आ जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में आपका जो बॉडी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उस समय आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी मसल्स में ज्यादा आ जाएगा, हाथ की और पैरों की, जिससे या तो अगर आपको भागना है तो आपको एनर्जी रहे भागने में, और आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा, आपको हार्ट रेट चाहिए, आपकी लंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए सो दैट यू हैव दैट एनर्जी। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी, एंड इस समय योगा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल अपने आप कम आने लगा हो जाता है, बिकॉज आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी एंड आपका सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन विल गो टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए योगा ज्यादा करना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी बैलेंस स्टेट में रहे। और योगा क्या करता है, इट हेल्प्स विद द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस सबको आएगा बट रिस्पॉन्स कैसे आप करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो योगा हेल्प्स विद योर बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड हमारे गुड हार्मोन्स होते हैं बॉडी से जो रिलीज होते हैं, डोपामिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, तो योगा हेल्प्स इन रिलीजिंग दोस गुड हार्मोन्स। तो वो गुड हार्मोन्स और भी तरीकों से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ चॉकलेट, आपके गुड हार्मोन्स निकलेंगे, बट देयर आर अदर नेगेटिव थिंग्स टू इट। इफ यू आर वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शो, उससे भी आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट योगा जब आप करते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहते हैं। सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन बीइंग इन दैट हैप्पी स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम। अब वी वर टॉकिंग अबाउट द चक्रास। सो योगा जो होता है वो आपकी चक्रास को एक्टिवेट करता है, बैलेंस आउट योर चक्रास। फिर मंत्र, सिंस आप लोग नेपाल में मोस्टली रहेगा, आई एम सीइंग पीपल आर फ्रॉम नेपाल, आप लोग भी मंत्र बहुत यूज करते हैं। यूएस में बहुत सारे लोगों को मंत्र के बारे में इतना नहीं पता है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे योगा सेशंस जो होते हैं वो मंत्र से ही स्टार्ट होते हैं। सो मंत्र क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जगह पे हमारी जीभ लगती है, ईदर इट विल बी ऑन द सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, टीथ। तो ये सारे के सारे इसके साइंटिफिक रीजंस होते हैं कि मंत्र क्यों बनाया है, कितनी लंबी ध्वनि लेके जानी है, ओम बोलना है तो कैसे बोलना है।
तो सारे की सारे जो मंत्र होते हैं, जब सूर्य नमस्कार भी करते हैं वो हर एक आसन मंत्र के साथ होता है। तो उसमें सबके पीछे साइंस है कि आपको कौन सा अपना ग्लैंड, कौन सा ऑर्गन एक्टिवेट करना है। तभी जो पुराने जमाने के जो लोग होते थे, जो ये बहुत फॉलो करते थे, उनको बहुत बीमारियां थी नहीं, और उनको हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इतनी सारी दवाइयां कुछ नहीं लेना होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू प्रैक्टिस बेसिक्स। खाना, प्रॉपर टाइम पे खाना, प्रॉपर टाइम पे उठना, प्रॉपर टाइम पे सोना, आसन करना, प्राणायाम करना, मंत्र जाप करना। तो योगा में ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव मतलब पूरे ग्रुप के साथ वर्क करती है। एंड देन ब्रेथ कंट्रोल, जब आप प्राणायाम करते हैं, इवन आप जब योगा करते हैं, तो कुछ बैलेंसिंग पोज होते हैं योगा के। जैसे आप अगर वृक्षासन कर रहे हैं, ट्री पोज, सो यू हैव टू स्टैंड ऑन वन लेग। वो वन लेग में खड़े होने के लिए फॉर एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए, आपको कुछ सर्टेन वे में ब्रेथ लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ सर्टेन तरीके से अपने माइंड को फोकस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। सो जब आप ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स घूम रहे होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। सो बेसिकली काफी लोगों को जो कैंसर वगैरह होता है, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। और जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसमें भी सेल ग्रोथ होती है, बट वो कंट्रोल्ड होती है। कैंसर में वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, सेल बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर ट्यूमर बन जाते हैं। तो जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स हैं या फिर सेल्स, जो कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं अनकंट्रोलेबली, वो कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, और सारे बैलेंस कोश होते हैं हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं। और ओजस, ये डिफरेंट टर्म्स है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट इन दिस, कभी फ्यूचर में वी विल हैव जस्ट फॉर योगा वी विल टॉक अबाउट इट। तो ये आयुर्वेदिक और योगिक टर्म्स हैं, कोशास और ओजस। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी कि एक्टिवेट होता है, क्या क्या होता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो जाएगा। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, नॉट जस्ट पीपल हु आर 40+, आई हैव सीन पीपल नाउ जो 20s में भी हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ द वेरी बैड ईटिंग, whatever diet they are taking, उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है। सो ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन दीज डेज, हाई ब्लड प्रेशर। तो लोअर करता है योगा, आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और बहुत स्टडीज हुई है कैसे योगा हेल्प करता है। आपके प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और आपकी जो ब्लड फ्लो है वो स्किन में ज्यादा होगा, तो स्किन डिजीज अगर आपको बहुत हो रही है तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। या फिर आपकी स्किन बहुत डल या ड्राई हो रही है, सोरियासिस वगैरह हो रहा है, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन विल बी हैपनिंग इन योर बॉडी, इन योर स्किन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जैसे आपकी इंटेस्टाइन है वो ऐसे एक मूवमेंट करती है जिससे खाना आगे जाता है, एंड देन इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी। सो जब आप योगा करते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, एंड आपका जो खाना है वो बॉडी में नहीं रहता, बाहर निकल जाता है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट दैट वट एवर यू आर ईटिंग, इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी, इट इज नॉट स्टेइंग देयर। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, अगर खाना आपकी बॉडी में ही रह रहा है तो वो रीअब्सॉर्ब होता रहेगा, और वो आम बना देता है। आम इज अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा, ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा, एंड देन यू विल हैव वेरियस डिजीजेस। स्किन डिजीज हो सकती है, या फिर आपको कोई भी एक मेजर डिजीज हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, एंड ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी कुछ आसन हैं, आई डोंट नो अगर आपने कभी योगा का कुछ प्रैक्टिस किए हैं, बट दीज आर द नेम्स ऑफ फ्यू आसनास। सो फर्स्ट आसन जो आप कर सकते हैं इस कॉल्ड एज सुखासन। बहुत बेसिक है, इसमें आपको बस नोट डाउन करना है कि आप प्रेजेंट में रहें। अगर बहुत से लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे दे कैन जस्ट कीप ब्लैंकेट और समथिंग सो दैट दे कैन सिट कंफर्टेबली। अब है उत्तान आसन। उत्तान आसन में नीज बेंड नहीं होते हैं, एंड यू बेंड फॉरवर्ड। सो व्हेन यू डू दिस, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है हेड में आ रहा है पूरा, सो इट हेल्प्स इन एक्चुअली नरिशिंग योर ब्रेन सेल्स, एंड ऑल्सो आपका एब्डोमेन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो दिस आसन हेल्प्स यू। इट हेल्प्स यू इन एक्चुअली कॉन्स्ट्रिक्टिंग योर एब्डोमिनल मसल्स, और पैनक्रियास को एक्टिवेट कर रहा है, लीवर को एक्टिवेट कर रहा है, स्प्लीन को एक्टिवेट कर रहा है। तो इवन अगर आपको डायबिटीज की सिचुएशन हो रही है या बहुत भूख लगती है, वो कंट्रोल में आने लग जाएगी, टमी कंट्रोल में आने लग जाएगी। देन इज शशांक आसना। दिस आसना डेफिनेटली डेली एवरीवन शुड डू इट, बिकॉज ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है।
सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड्स पोज। और इस आसन में भी आप देखेंगे तो कैसे आपका एब्डोमेन, कैसे आपका पेट जो है वो एकदम दब रहा है। तो इससे अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा फैट है तो वो कम होने लग जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो आपको इम्प्रूव होगा। प्लस इसके अंदर क्योंकि आपका सिर नीचे है, ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके सिर में आता है, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और प्रॉपर सर्कुलेशन आपका नोज में, ईयर्स में, फेशियल मसल्स में आएगा। नेक्स्ट इज गरुड़ासन। सो दिस इज अ बैलेंसिंग पोज। हियर एवरीथिंग कम्स इन कॉन्टैक्ट, लाइक आपका ब्रीदिंग कैसे होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग इसमें गहरी नहीं होगी, शैलो ब्रेथ्स होगी, छोटी छोटी ब्रेथ्स होगी। एंड कैसे आपको इस पोजीशन में रहना है, कैसे आपको अपने नीज बेंड करने हैं। सो दिस आसन इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव अल्जाइमर्स इश्यूज, या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन लेके जाना है। सो ये आपके लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हैंड्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है। सो दिस इज वेरी गुड पोज टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वज्रासन, दिस इज द ओनली आसन जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी आसन में तो गैप रखने पड़ेगा आपको, एटलीस्ट लाइक 3 hours आफ्टर योर मील्स। बट जो वज्रासन है ये आप जस्ट खाने के बाद कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपने ब्लड सर्कुलेशन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, पैरों तक नहीं जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन इज मेजरली इन योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, आपके पेट के ही एरिया में है। तो इसके अंदर डाइजेशन आपका थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, आपका ब्लड सिर्फ फोकस रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अच्छे से आप खाना डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे। एंड देन देयर इज बोट पोज। बोट पोज भी आपके नाभि को बैलेंस करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी की नाभि ऊपर है या फिर नीचे है, वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगी। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि अगर नाभि ऊपर होती है तो वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, नाभि अगर नीचे आ जाती है तो उनको डायरिया हो जाता है। सो नाभि का अपनी पोजीशन से रिलोकेट होना कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगर आप जिम जाते हैं तो अगर हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, या फिर आपने बहुत बॉडी एक्सर्शन ले लिया है, या फिर आप डिहाइड्रेटेड है, देयर आर वेरियस रीजंस। तो ये बोट पोज बैलेंस कर देती है आपकी नेवल को। देन देयर इज दिस हलासन। हलासन इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव थायराइड कंडीशन। जो सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बट ओवरऑल इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड फॉर योर सर्कुलेटरी सिस्टम, and also for your respiratory system, for your thyroid glands. So this is, and the last one is Shavasana. This is most difficult asan to do. Why? Because Shavasana का main चीज होता है you should not fall asleep. So while you are doing this, आपको 5 मिनट तक इस पोजीशन में रहना है, but you should not fall asleep while doing this. You should generally keep your awareness in your body. और सबके लिए सारे आसन नहीं होते हैं, किसी किसी को कंडीशन होती है एनाटॉमिकल, लाइक किसी को सर्वाइकल का पेन है, किसी को लोअर बैक पेन है, किसी को आर्थराइटिस है, सबके लिए आसन डिफरेंट होते हैं। बट सिंस लाइक आई एम गेसिंग योर एज विल बी इन योर कंडीशन, यू ऑल आर नॉट हैविंग एनी ऑफ दीज क्रॉनिक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो यू कैन प्रैक्टिस दीज आसनास। अब ये प्राणायाम है। प्राणायाम इज योगिक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे करनी है? सो फर्स्ट इज अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। तो आप अपने पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर लेते हैं, राइट नोस्ट्रल बंद रखते हुए, एंड देन फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकालते हैं। अगेन राइट से सांस अंदर लेते हैं एंड लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये आपके ब्रेन के बोथ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स को बैलेंस आउट करता है। सो इट इज वेरी गुड टू एक्चुअली बैलेंस योर ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को बैलेंस करने के लिए। Then is Kapalabhati. So Kapalabhati is when you are forcefully exhaling. तो फोकस रहता है सिर्फ फोर्सफुल एक्सेल करने में। शीतली प्राणायाम, अगर आपको बहुत हाइपर एसिडिटी है या फिर गर्मी अभी बहुत पड़ेगी, तो यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज बहुत ही ज्यादा बॉडी गर्म हो जाती है। सो इन दिस केस यू शुड प्रैक्टिस दिस। तो जब आप इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, तो आपको जीभ ऐसे ट्विस्ट करनी है, कर्ल करनी है, एंड देन आप इनहेल करिए सांस को अंदर जीभ के थ्रू। जब सांस बाहर छोड़नी है तो नाक के थ्रू। आप ये ट्राई करिएगा if you will remember this pranayam technique. This actually helps a lot for people who have a very heated body और जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। So how to do it? Inhale, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो through your tongue, and when you breathe out, do it through your nostril. Then is Brahmari pranayam. Brahmari pranayam में basically आप सांस अंदर लेते हैं नाक से, and then you breathe out making the sound of humming bee.
तो जो साउंड होती है वो आपकी ब्रेन में सर्कुलेट करती है एंड वो आपके ब्रेन सेल्स को रिचार्ज करती है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज भ्रामरी प्राणायाम. नाउ जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन वाज, आपने बहुत सुना होगा मेडिटेशन के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, बट बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं बिकॉज उनका कंप्लेन होता है कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. सो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनको क्या करना चाहिए, उनको बैठना चाहिए विद पुटिंग सम म्यूजिक ऑन. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑन करके जस्ट फोकस ऑन एनी वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज आ रही है, मे बी उसमें 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को कैप्चर कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल फ्लूट इज देयर, बांसुरी की आवाज है. तो जब सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में बज रहे हैं, आप सिर्फ बांसुरी पे फोकस करिए और उससे फोकस मत हटाइए. दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला विच यू कैन यूज टू कीप योर ब्रेन इन योर हैंडल. हमारा ब्रेन बहुत भागता है इधर उधर, तो आप एक एक्टिवली किसी एक साउंड में आप अपने फोकस को लेके आइए एंड देन यू विल सी ग्रेजुअली विद दिस प्रैक्टिस you will start to have good meditation without any support of music. तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपका हैप्पी हार्मोन्स, जैसा कि अब मैंने बोला था, एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन, वो रिलीज होता है, तो आप हैप्पी स्टेट में रहते हैं. आपको एंगर, इरिटेबिलिटी, वो सब कम हो जाएगी. तो अगर आप स्ट्रेस आउट कंडीशन में है, वो सारी चीजें आपकी बैलेंस्ड में रहेगी. एंड गाबा रिलीज होता है. It improves your focus and attention. So since like you are so much, you have to have results, आपको competition exams देने हैं, तो आपको focus भी चाहिए, आपको attention भी चाहिए. तो ये सारे दोनों के दोनों चीज आते हैं when you are doing meditation. And meditation से क्या होता है, आपके अंदर जितने भी इमोशनल फैक्टर्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं वो टाइम से, वो स्टोर हो चुके हैं. आप मेडिटेशन करते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं. सो इट इज लाइक आपके पास में एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे सामान है, पत्थर रखे हुए हैं जो आपके काम के नहीं है, बट इट इज स्टिल देयर एंड मेकिंग इट हेवी. जब आप मेडिटेशन करते हैं, इट एक्ट्स लाइक कि वो जो पत्थर हैं वो आप बाहर फेंक रहे हैं एंड द बॉक्स बिकम लाइटर फॉर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू कम इन.